નમસ્કાર, સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પંકજ. પ્રલય આવશે, સૃષ્ટિનો અંત આવશે, આ તે વાતોમાંથી એક છે જેને ધર્મ અને વિજ્ઞાન બંને માને છે. બંનેની થિયરી અને રીત અલગ અલગ જરૂર છે, પણ જીવ જગતનો અંત નક્કી છે એ વાત પર બંને એકમત છે. પણ આ અંત કેવી રીતે થશે, ક્યારે થશે, તેની કોઈ સચોટ નિશાની નથી જેનાથી તે ખબર પડી શકે કે હવે દુનિયાનો અંત આવવાનો છે. જેનો જવાબ છે હા. આ જવાબ છુપાયો છે હજારો જૂના એક શિવધામમાં, તે ધામમાં સ્થાપિત મહાદેવના અંગૂઠામાં. દેવોના દેવ મહાદેવ, કરુણામય તો નીલકંઠ, ક્રોધિત થાય તો રુદ્ર, પણ સંહાર કરે તો મહાકાળ. જ્યારે પાપ થશે ભારે તો ક્રોધિત થશે ત્રિપુરારી. તાંડવના તાપથી, ત્રિનેત્રના તાપથી ભોળાનાથ બનશે સંહારક. શું સાચે જ દુનિયાનો અંત નિશ્ચિત છે? અંત નક્કી છે તો ક્યારે થશે? કળયુગ તો ચાલી જ રહ્યો છે, તો કેવી રીતે ખબર પડશે કે અત્યારે થશે, 1 વર્ષ પછી થશે, કે પછી 100 વર્ષ પછી થશે, કે પછી 1000 વર્ષ પછી? તે કોણ કહેશે? તે કેવી રીતે ખબર પડશે? આ રહસ્ય બતાવશે આ શિવધામ. તે ધામ જેના કણકણમાં શિવ છે અને દરેક ક્ષણે ચમત્કાર. આ સારો ખરાબ જે પણ વ્યક્તિ આવ્યો તે નતમસ્તક થયો. દુનિયાની એકમાત્ર જગ્યા જ્યાં જોવા મળશે સૃષ્ટિના વિનાશનો પ્રથમ સંકેત. ધરતીનું એકમાત્ર સ્થાન જ્યાં આજે પણ છે માતા સરસ્વતીનો વાસ. તે જંગલ, તે આશ્રમ જ્યાં રામે લીધી હતી શિક્ષા, જ્યાં મહાદેવના અંગૂઠા પર ટક્યો છે સમગ્ર સંસાર. તો આ બધું તમે જોવા માંગશો? જો હા, તો ચાલો અમારી સાથે અચલેશ્વર મહાદેવના ચમત્કારી દરબારમાં. ભાગવત પુરાણમાં 4 પ્રકારના પ્રલયનો ઉલ્લેખ મળે છે. પુરાણો મુજબ બ્રહ્માજીના એક દિવસમાં એક કલ્પ વીતે છે. દરેક કલ્પમાં 4 યુગ હોય છે. અંતિમ યુગ એટલે કળયુગ ચાલી રહ્યો છે. લોકોનો દાવો છે કે કળયુગનો અંત જ્યારે નજીક આવશે ત્યારે સૃષ્ટિના વિનાશની સૌપ્રથમ હલચલ, પહેલી નિશાની માઉન્ટ આબુમાં જોવા મળશે, તે પણ અચલેશ્વર મહાદેવમાં. સવાલ છે કે અચલેશ્વર મહાદેવમાં એવું શું થશે કે પ્રકૃતિના વિનાશનું પહેલું કારણ બનશે? મહાદેવ કયો ઈશારો કરશે? માઉન્ટ આબુ. રાજસ્થાનનું કાશ્મીર, રણ પ્રદેશનું એકમાત્ર હિલ સ્ટેશન, રેતીના સમુદ્રના કિનારે આવેલી પ્રકૃતિની એક અજાયબી. અહીં ભક્તિ, શક્તિ અને શાંતિનો અદ્ભુત સંગમ મળે છે. જેટલી સુંદર જગ્યા તેટલી જ સુંદર સફર. પણ આ વખતે નજારા નજરમાં હતા. શું हमारी आंखों में धूल तो नहीं नाखवामा आवी रही? मंदिर की तलाश हमें इतनी दूर से थी, अचलेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर ना
भगवान शिव की मूर्ति की पूजा होती है और ना ही उनके शिवलिंग की। एक ऐसा मंदिर जहां पर शिव भगवान के अंगूठे की पूजा होती है, जिसके नीचे बसा है एक पाताल लोक का ऐसा रहस्य जिसको जानने के लिए हम यहां पर आए हैं। तो चलिए देखते हैं महादेव का वो चमत्कार। મંદિરમાં પુરાણોના પ્રમાણ દરેક જગ્યાએ છે। अचलेश्वर महादेव के इस मंदिर में भगवान विष्णु भी विराजमान हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान विष्णु के 10 अवतार मौजूद हैं, जिसकी मूर्ति यहाँ के मेन गेट के पास लगाई गई है। जो विष्णु भगवान का मंदिर है, आप देख सकते हैं कि ये वो 10 अवतार हैं जिसमें विष्णु भगवान की हर वो छवि को दर्शाया गया है। આ ઇતિહાસના સાક્ષી બનવા લાખો લોકો અહીં આવે છે। मंदिर के चारों तरफ 12 ज्योतिर्लिंग है और वो आपने इसमें हर जगह हर तरीके से अलग अलग तरीके से बनाए हुए ज्योतिर्लिंग हैं और महान पुरुषों द्वारा ये स्थापित शिव मंदिर है, ऐसा यहाँ के लिए कहा जाता है। और यहाँ की हर व्यक्ति की मनोकामनाएं अक्सर आते हैं पूर्ण होती है और काफ़ी लोग अपने दिल की आस्था से आते हैं, कोई बुलाने नहीं जाता उनको। अंदर मंदिर में गई तो वो महाराज जी ने बताया कि बस वो पानी ऐसे ही आता है और भी चला जाता है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चमत्कार है और मैं इतनी खुश हो गई। मैंने पहली बार ऐसा देखा। अंदर का शिवलिंग जो है वो कभी कहीं भी नहीं दिखेगा, यहाँ देखिए। તો શું અમને ફોન કરનારે પણ પાણીની સાથે જ સૃષ્ટિના વિનાશની કડી જોડી હતી? પણ કેવી રીતે? હવે તે નહોતું સમજાતું કે પહેલા શું કે लिए વિનાશના સંકેતનો કોયડો કે પછી પાણીનું રહસ્ય? શું સાચે જ આ મંદિરમાં પ્રલયનો પ્રથમ સંકેત છુપાયેલો છે? લોકોએ કહ્યું કે મહાકાળના દરબારમાં કાળથી શું ડરવાનું? અંદર જાઓ, તમને તમારા બધા સવાલોના જવાબ મળશે। ગર્ભગૃહની અંદર ભક્તોની ભીડ હતી। થોડા સમય પછી અમારો પણ નંબર આવ્યો। अचलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जितना हमने अब तक सुना था वो अब साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, ना ही किसी शिवलिंग की पूजा होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अर्घा है जिस पर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कोई शिवलिंग यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक जो चीज जो जिसे देखने के लिए हम इतनी दूर से आए थे वो थी वो शिव भगवान की अंगूठे की निशानी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जाली लगी है इसे पंडित जी अगर आप हटा पाएं, उसे हटाकर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो शिव भगवान का जो अंगूठा है वो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, इसे ही कहा जाता है कि यही महादेव काशी नरेश का अंगूठा है, जिसके बल पर यहाँ पर माउंट आबू जो पर्वत है वो टिका हुआ है। કહેવાય છે કે આ નાના ખાડામાં આખી સૃષ્ટિના વિનાશનો પ્રથમ સંકેત જોવા મળશે। તો સૌથી પહેલા આને જ સમજીએ। આ ખાડો વચ્ચોવચ્ચ હતો। વચ્ચે જે છે તેને મહાદેવના પગનો અંગૂઠો કહેવાય છે। ત્યારે તમને એક અદ્ભુત વાત સમજાઈ। તેનો રંગ એકદમ ભૂરો હતો, આખી દિવાલ કરતા અલગ। જ્યારે પિંડી આ શિખરનો જ ભાગ હતી। અંદર થોડું પાણી હતું જે ભક્તોએ ચઢાવ્યું હતું। બધું જ જોયું, બધું સાંભળ્યું, પણ શું આ બધું સાચું હતું? હવે દરેક સવાલનો જવાબ તે આપશે।
જેને આ વિસ્તારના ઇતિહાસ, વેદ અને પુરાણોનું જ્ઞાન હોય. થોડા સમયની રાહ અને પછી આ સત્ય આખી દુનિયા સામે હશે. માધ્યમ શું હશે તમે જાણો છો. અમે જ માધ્યમ છે તો વિશ્વાસ કરો કે મૂળમાં ગયા વિના અમે કોઈ દાવો પણ નહીં કરીએ. માટે અમે મગજ વાપર્યું. કદાચ આ ખાડાનો બીજો છેડો ક્યાંક બહાર નીકળતો હોય. વિચારો, મહાદેવનો ભક્ત કેટલું પાણી ચડાવતો હશે. વધારેમાં વધારે 1 લોટો. અમે વિચાર્યું કે અમે ઘણું બધું પાણી એક સાથે ચડાવીશું, પછી માપીશું અને પછી થઈ જશે ચમત્કાર ડીકોડ. ચાલો શરૂ કરીએ. માઉન્ટ આબુની કહાની યુગલો પહેલા અચલેશ્વર મહાદેવથી શરૂ થઈ હતી. આ કહાનીનો અંત પણ અહીંથી જ થશે. તે સાથે દુનિયાનો પણ અંત આવશે. પણ કેવી રીતે તે સમજવા માટે આપણે માઉન્ટ આબુની ઉત્પત્તિને સમજવી પડશે, જેનો ઉલ્લેખ પુરાણોમાં મળે છે. પહેલા અહીં કોઈ પર્વત નહોતો, ખીણ પણ નહોતી. અહીં જંગલ હતું, જ્યાં ગુરુ વશિષ્ઠનું આશ્રમ હતું. અહીં જ ભગવાન શ્રી રામ અને તેમના ભાઈઓએ ગુરુ વશિષ્ઠ પાસેથી દીક્ષા લીધી હતી. राम, भरत, शत्रु और लक्ष्मण दोनों चारों भाइयों और भी विद्यार्थी अंदर थे, ब्राह्मणों के विद्यार्थी भी अंदर थे. तो मतलब सब शिक्षा पूरी हो गई. उसके बाद में जाने लगे तो उत्तम नाम का जो एक विद्यार्थी था, तो वो मतलब घर जाने लगा. तो उन्होंने पहले अब बोला कि गुरु मैं जा रहा हूँ, आपको गुरु दक्षिणा लेना चाहता हूँ. तो उसने बोला कि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, गुरु माता से पूछ लो. वो जाकर पूछा, माता जी से पूछा कि माता जी ये गुरु दक्षिणा लेना चाहता हूँ. तो बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन देना ही चाहता है तो मुझे दिव्य कुंडल ला के दे दे. तो माता ने वो दिव्य कुंडल दे दिए. उत्तम नाम का लड़का लेकर रवाना हो गया. वो अंदर ध्यान में बैठ गया. पीछे 10 नग लगा हुआ था. दिव्य कुंडल लेकर पताल में चला गया. ध्यान छूटा, देखा कि दिव्य कुंडल है ही नहीं. उन्हें रोने लगा. वशिष्ठ मुनि के पास में रोने लगा, गुरु जी मैं से ये तो जाके लेके आया था, लेकिन यहाँ दिव्य कुंडल गायब हो गए. फिर उन्होंने इंद्र भगवान को प्रार्थना की. तब फिर उन्हें गदा का भ्रमण किया. થોડી વાર પછી અમને અહીં બોલાવનાર વ્યક્તિ પણ આવી ગયો. एक दिन भ्रमण करते करते देखा उनकी जो प्रिय गाय थी, जिनकी वो सेवा किया करते थे, नंदिनी गाय, बड़ी दिव्य गाय थी. तो उसको साथ लेकर के यहाँ से भ्रमण करते हुए निकल रहे थे. तो अनायास वो गाय उस खाई में, उस खड्डे में गिर गई. सरस्वती जी का आह्वान किया, भगवान वरुण का आह्वान किया, तो वो सारा जो खड्डा था भरपूर जल राशि से परिपूर्ण हुआ और गाय तैरकर बाहर आ गई. કહાની મુજબ સરસ્વતી નદીના ગયા પછી ફરી અહીં ખીણ બની ગઈ. તો ગુરુ વશિષ્ઠે આ ખીણને કાયમ માટે બંધ કરવાનો એક રસ્તો વિચાર્યો. वो गए हिमालय के पास, जो पर्वतों का राजा है, उनके पास जाकर के कहा कि एक पर्वत मुझे चाहिए. तो हिमालय ने कहा कि महाराज मेरा पुत्र है नंदीवर्धन, आप उसको ले जा सकते हैं, मैं उससे कह देता हूं. तो नंदीवर्धन जो ये माउंट आबू है, इसका मूल नाम नंदीवर्धन है. नंदीवर्धन पर्वत है. इसके पास जब वशिष्ठ मुनि पहुंचे तो उन्होंने कहा बिल्कुल जो आ गया. परंतु वो यहाँ आने में समर्थ नहीं था कि मैं कैसे आपके साथ जाऊं. और वहां का ऐसा दिव्य वातावरण था. तो भगवान महात्मा वशिष्ठ ने उनसे कहा कि जैसा वातावरण तेरा यहाँ है, वैसा ही वातावरण मैं वहां पर भी ऐसा तुझे आशीर्वाद देता हूँ. तो आशीर्वाद दिया कि यहाँ जितनी जड़ी बूटियां हैं, वो जड़ी बूटियां वहां पर भी तेरे ऊपर होगी. तो सब आशीर्वाद दिए. फिर जाने में सक्षम नहीं था तो उसका एक मित्र था, नाग, जिसका नाम था अर्बुद, सर्प था. तो उसको भगवान वशिष्ठ ने आज्ञा दी कि तुम इसको, नंदीवर्धन को अपनी पीठ पर बिठा और इसको वहां ले जाकर स्थापित करो. तो संत की आज्ञा थी, यहाँ लाए, स्थापित कर दिया. तो उसको भी वरदान दिया
कि नंदीवर्धन का आज से नाम तेरे नाम से जाना जाएगा। तो इसका नंदीवर्धन नाम हटकर के नाम उन्होंने ही रखा अर्बुदांचल नाम। आज भी इसका नाम अर्बुदांचल है। करके आए, स्थापित कर दिया, परंतु वो पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाया। तो उन्होंने सोचा कि ये स्थापित नहीं होगा तो ये तो बल्कि और भी खराब काम है। तो उन्होंने फिर भगवान काशी विश्वनाथ का तप करना प्रारंभ किया, क्योंकि भगवान महादेव के वो परम उपासक थे। तो उन्होंने तप करके महादेव को प्रसन्न किया। महादेव ने कहा कि इस पर्वत को आप अचल कर दीजिए आपकी कृपा दृष्टि से। भगवान ने अंगूठा भिड़ा दिया वहां से अखिलेश्वर महादेव नाम है उसके, वो लिंक नहीं है, वो खाइए इसे आप बत्तीग्रह का अंदर देखोगे तो वो अंगूठा दिखेगा अंदर, शिवलिंग नहीं है। कहा जाता है कि जिस दिन ये अंगूठा हट जाएगा उस दिन माउंट आबू पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा और दुनिया की भी बात होती। तो ये क्या कहानी है? जी बिल्कुल, क्योंकि मान्यता और प्रमाण भी है कि ये जो माउंट आबू है ये भगवान ने अपने अंगुष्ठ पर धारण कर रखा है, या कहते हैं कि उन्हीं के उस अंगूठे की शक्ति के कारण ही यह टिका हुआ है। अब यहाँ का वातावरण भक्तिमय है, यहाँ आज भी महात्मा तप करते हैं, तो उनके तप के प्रभाव से तो ये सारा पूरा पर्वत टिका हुआ है। कालांतर में अगर अत्याचार बढ़ते हैं, पाप बढ़ते हैं, और हो ना हो तो हो सकता है, क्योंकि संत ऐसा कहते हैं आज भी बड़े बड़े महात्मा की, अगर यहाँ पर पाप बढ़ेंगे तो निश्चित ही प्रकृति इसको स्वयं में वापस अपने आप में विलीन कर। આ કહાની અને થિયરી મુજબ જ્યારે તપસ્વી આ ધરતી પર નહીં રહે ત્યારે અર્બુદાંચલને સ્થિર રહેવાની જરૂર નહીં પડે। જ્યારે મહાદેવ પોતાનો અંગૂઠો હટાવી લેશે ત્યારે માઉન્ટ આબુ સમાપ્ત થઈ જશે। અને આ બધું ત્યારે થશે જ્યારે કળયુગ ચરમસીમા પર હશે। માટે દાવો કરનારા કહે છે કે માઉન્ટ આબુનું સમાપ્ત થવું કળયુગ ચરમસીમા પર હોવાની નિશાની હશે। आपकी इजाजत हो तो क्या हम ये चीज देखना चाहते हैं कि पानी कितना ऊपर आता है? हम पहले लोटे से एक बार ही चेक करना चाहते हैं कि अगर हम 1 लोटा यहाँ पर जल अर्पण करते हैं तो क्या पानी और ऊपर आएगा? जी, वो पानी बिल्कुल ऊपर नहीं आएगा। आपके मन में विश्वास नहीं हो, आप बिल्कुल जल भगवान की चढ़ाइए और देखिए, आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इसमें कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। आप निश्चित, क्योंकि कहानियां ये भी हैं कि इसमें जल भरने की कोशिश भी की गई थी, तब भी ये कुंड भरा नहीं। जी, ये कहानी मात्र नहीं है, इसका पुराणों में वर्णन है और यह प्रमाणित बातें हैं। कहानी मात्र एक दंत कथा ही अलग विषय है, परंतु यह तो महर्षि वेदव्यास ने पुराणों में लिखी है, वही बात आप प्रत्यक्ष, और आप बिल्कुल जल आप अर्पण करके देखिए। अब हम जल अर्पण करने की कोशिश करेंगे इस कुंड में और देखेंगे कि क्या जो जल का स्तर है वो ऊपर आता है या नहीं आता। जिस पाताल की बात हो रही है, अब उस पाताल के रहस्य को हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने एक लोटे को भी भरा है, एक मिट्टी के घड़े को भी भरा है, और एक हांडी जो है स्टील की उसको भी हमने पूरी तरीके से पानी में भर दिया है। पानी इसमें है मौजूद, और अब हम अर्पण करने की कोशिश करेंगे इस कुंड में और जानेंगे कि क्या जल स्तर बढ़ता है और ये पानी कहीं ऊपर आता है या नहीं आता है। तो पंडित जी शुरुआत करें। जी, आप जल से बिल्कुल प्रत्यक्ष देख करके। અમને ડર હતો કે પાણી નાખતા જ વહી જશે, તો અમે કંઈ સાબિત નહીં કરી શકીએ। पहले हम लोटे का जल इस कुंड में डालेंगे और देखते हैं कि पानी कितना भर जाता है। एक चीज और कर सकते हैं कि क्या हम माला से एक बार चेक कर लें कि कितना पानी ऊपर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, आप चेक कीजिए कैमरे के ऊपर। यह तो प्रत्यक्ष प्रमाणित बात है। અમે પછી ફૂલનો હાર નાખ્યો। इस माला को अब हम एक बार कुंड में डालने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि ये माला कहां तक जाती है, जिससे हमें अंदाजा लगेगा क्या पानी का जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। हमारे पानी को भरने के बाद अगर जल स्तर बढ़ता है तो हमें एक बात समझ में आ जाएगी कि कितना बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोटे से पानी को, जो जल है उसको अर्पण करेंगे। कोच नहीं, बस हमें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पानी ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा है और क्या सच में पानी का स्तर जो है ज्यादा पानी डालने के बाद बढ़ता है या नहीं बढ़ता। हाँ नहीं, बिल्कुल, आप थोड़े बड़े पात्र में बिल्कुल जल लीजिए और भगवान को अर्पण कीजिए और आप आंखों से ही देखिए,
क्योंकि यह तो प्रमाणित बात है। एक बार और कोशिश करेंगे, मिट्टी के घड़े से जो पानी है उसको अर्पण करने की कोशिश करेंगे। जी निश्चित, आप बिल्कुल बड़े पात्र में जल लेकर के आप बिल्कुल अर्पण करके देखिए। तो अब हम मिट्टी का जो घड़ा है, मतलब उस लोटे से जो बड़ा पात्र है उससे अब पानी डालने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि पानी का स्तर अब बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। ચાર વર્ષમાં જ